everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class, we are going to discuss about MCQ on unit operation, and this is the part 2. Okay, in part 1, we already discussed 20 MCQ, and now we are going to discuss 20 more question. Question number 21. In dry milling, the moisture content should be. So the correct answer is less than 2%. Question number 22. For effective operation of ball mill, the ball charges should be. So the correct answer is 30 to 35%. यहाँ पर देखिए the degree of filling the mill with ball also influence the productivity of the mill and milling efficiency. जितना भी बॉल मिल को हम फिल करेंगे उसकी बॉल मिल की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को वो अफेक्ट करेगी. विद एक्सेसिव फिलिंग द राइजिंग बॉल कोलाइड विद falling one. Generally filling the mill by ball must not exceed 30 to 35% of its volume. Question number 23. Critical speed of ball mill is the speed at which. Correct answer is ball begins to centrifuge with the mill. Just look at here. This is the balls. यहाँ पर देखिए balls हैं और ये इस तरह से rotate कर रही हैं. Okay. So the grinding works on the principle of critical speed. Critical speed can be understood as that speed after which steel balls that are responsible for the grinding of the particle. यहाँ पर जो स्टील बॉल्स होगी, जैसे ग्रीन कलर की बॉल है, ये ग्रीन कलर की बॉल में हमारा जो येलो कलर का पार्टिकल वो बीच में आएगा तो वो उसकी पिसाई हो जाएगी. Start rotating along with the direction of cylindrical device and thus causing no further grinding. Question number 24. Raulfia and glycerizer size reduction can be done by which best method? So the correct answer is cutter mill. यहाँ पर आप देख लीजिए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट हमारे पास में कौन कौन से हैं. तो कटर मिल एक इक्विपमेंट है. एक्शन किसके थ्रू करता है? ये कटिंग के थ्रू करता है. एंड किसके लिए यूज होता है? फाइब्रस, टफ एंड सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है और फेब्राइल मटेरियल के लिए यूज नहीं होता है. तो राउल्फिया एंड ग्लीसराइजर जो है हमारे कैसे हैं? फाइब्रस और सॉफ्ट मटेरियल. सेलेक्ट अ मिल फॉर अ लो मेल्टिंग ड्रग. लो मेल्टिंग ड्रग के लिए हमें कौन सी मिल यूज करनी चाहिए? फ्लूइड एनर्जी मिल हमें यूज करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? यहाँ पर देखिए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और हमारे पास में आ गई फ्लूइड एनर्जी मिल, और जिसे हम जेट मिल भी बोलते हैं और माइक्रोनाइज मिल भी बोलते हैं. कौन से मैकेनिज्म पे काम करती है? इंपैक्ट और एट्रीशन के मैकेनिज्म पे काम करती है. पार्टिकल की साइज को कितना रिड्यूस कर देती है? 1 to 30 माइक्रोन रिड्यूस कर देती है. अब यहाँ पर देख लीजिए लो मेल्टिंग पॉइंट की जो ड्रग होती है, तो जैसे कि विटामिन, एंटीबायोटिक, एंजाइम, हार्मोन जो हैं ये लो मेल्टिंग के हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं और सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल के लिए इसको यूज नहीं किया जाता. क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120C. तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ऑफ द पाउडर दिए हुए हैं. ओके, सो वेरी फाइन पाउडर आप देखिए, और ये किस थ्रू सीव से पास हो जाना चाहिए? 120 सीव से पास हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 27. 10 mesh sieve contain how much opening in 1 linear inch? So the correct answer is 10. यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की मैश होती है, जैसे कि US मैश साइज is defined as a number of opening in 1 square inch of a screen. 1 square inch में कितनी ओपनिंग है उसको उसी के अकॉर्डिंग मैश साइज दी जाती है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, 36 mesh screen will have a 36 opening while a 150 mesh screen will have a 150 opening. For example, a product identified as a 100 mesh would contain only particles that pass through a 100 mesh. तो mesh number क्या होगा? बेसिकली mesh number, mesh is the number of opening in 1 linear inch of any sieve of. So 10 mesh sieve will have a 10 opening and 40 mesh sieve will have a 40 opening in 1 linear inch. This is the question number 28. Following is not a filter aid. इनमें से filter aid कौन सा नहीं है? तो जिलेटिन जो है filter aid नहीं है. तो यहाँ पर देखिए filter aid सबसे पहले समझना पड़ेगा कि filter aid क्या होता है. Filter aid such as diatomaceous earth have found widespread use in the fermentation industry to improve the efficiency of filtration. फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर एड को यूज किया जाता है. उनमें से एक एग्जांपल है डाइटोमियस अर्थ. ओके, सो एग्जांपल ऑफ फिल्टर एड कौन कौन से होंगे? डाइटम्स हो गए, जैसे कि किसेल गुड़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सिलिशियस डिपॉजिट्स. परलाइट, इट इज एन एल्यूमिनियम सिलिकेट. एंड सेल्यूलोज, एस्बेस्टस, चारकोल, टैल्क, बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ. दीज आर एग्जांपल ऑफ फिल्टर एड्स. क्लियर एवरीवन? Question number 29. Filter aids may be applied by. So percutting technique and body mix technique. Both
आर द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? सो हैंडलिंग ऑफ फिल्टर हेड को किस तरह से हैंडल किया जाता है? तो फिल्टर हेड मे बी यूज ऑन आइदर और बोथ टू वेज प्री कोटिंग टेक्निक्स एंड बॉडी मिक्स टेक्निक। प्री कोटिंग टेक्निक होती क्या है? बाय फॉर्मिंग अ प्री कोट ओवर द फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम के ऊपर प्री कोट बना दिया जाता है। ओके। और बॉडी मिक्स टेक्निक में क्या होता है? ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फिल्टर एड इज एडेड टू द स्लरी टू बी फिल्टर। यहाँ पर जो फिल्टर एड जो है वो उसका स्मॉल प्रोपोर्शन ऐड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रिटी टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर फॉलोइंग फिल्टर। इंटीग्रिटी टेस्ट कौन से फिल्टर के लिए यूज किए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज मेम्ब्रेन फिल्टर। यहाँ पर देखिए, द प्राइमरी पर्पस फॉर of the filter integrity test is to assure the integrity of the filter membrane, disc filter, capsule and cartridge. The device used to test the integrity of the filter is commonly known as a filter integrity machine. तो filter test के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फिल्टर इंटीग्रिटी मशीन। क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो ये समझिए व्हाट इज फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट क्या है, क्यों किया जाता है? Test carried out to verify and assure the quality and readiness of the filter membrane. फिल्टर मेम्ब्रेन की क्वालिटी और उसकी रेडीनेस को चेक करने के लिए फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट किया जाता है ताकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इंटीग्रिटी टेस्ट दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटीग्रिटी टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव इंटीग्रिटी टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं? बबल पॉइंट मेथड, डिफ्यूजन मेथड एंड प्रेशर ड्रॉप टेस्ट जो है यूज किए जाते हैं। Question number 31, the equation describing the factor affecting the rate of filtration is. So इसके लिए स्टोक इक्वेशन दी गई है। So यहाँ पर देखिए स्टोक्स लॉ क्या है, एंड स्टोक लॉ की इक्वेशन ये आपके पास में दी गई है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 32, फॉर इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑल बैक्टीरिया फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड द मेम्ब्रेन पोर साइज इज। सो मेम्ब्रेन पोर साइज क्या होनी चाहिए? 0.2 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग रूल्स इज रिलेटेड टू। ड्यूरिंग रूल किससे रिलेटेड है? डिस्टिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग रूल इज अ साइंटिफिक रूल डेवलप्ड बाय यूजेंट ड्यूरिंग which state that a linear relationship exists between the temperature at which two solution exert the same vapor pressure. अगर दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है, तो जब इनका वेपर प्रेशर सेम होगा उनके टेम्परेचर की जो रिलेशनशिप होगी वो लीनियर रिलेशनशिप होगी, एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 34, फिल्टर्स फंक्शन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। फिल्टर कौन से फंक्शन के थ्रू एक्ट करते हैं? सीविंग और स्क्रीनिंग के थ्रू करते हैं, एंट्रैपमेंट और इम्पैक्टेशन के थ्रू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। Clear? Question number 35, clarification is the term used when the solid content of the product does not exceed 1%. Question number 36, hammer mill works by following principle. So hammer mill कौन से principle के थ्रू एक्ट करती है? इम्पैक्ट के थ्रू। यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन दिया गया है और अलग अलग इक्विपमेंट है हमारे पास में। हैमर मिल है और हैमर मिल की जो मैकेनिज्म है वो इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रही है और पार्टिकल साइज कितना रिड्यूस करती है? 50 to 8000। Question number 37, following laws are used to predict energy requirement for commuting process. So correct answer is all of these, Rittinger law, Fick's law and Bode law. यहाँ पर देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट दी है, एंड कम्युनिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल कंज्यूम्स एनर्जी व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक अप द सॉलिड इनटू स्मॉल पीसेस। सो कम्युनिकेशन जो किया जाता है सॉलिड मटेरियल का, उससे क्या होता है? सॉलिड मटेरियल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। इसके लिए कम्युनिकेशन एनर्जी का पता लगाना होता है। कम्युनिकेशन एनर्जी किससे एस्टिमेट कर सकते हैं हम? रिटिंगल लॉ से कर सकते हैं, किक्स लॉ से कर सकते हैं, बॉन्ड लॉ से कर सकते हैं और होम लॉ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस नंबर। इनमें से डायमेंशन लेस नंबर कौन सा है? तो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे डायमेंशन लेस है। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशन लेस है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पावर नंबर देखिए, पावर नंबर भी क्या होता है? डायमेंशन लेस नंबर है, इसे न्यूटन नंबर भी बोलते हैं, ये डायमेंशन लेस नंबर है। और मास ट्रांसफर नंबर, तो मास ट्रांसफर नंबर का दूसरा नाम है शेरवुड नंबर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए मास ट्रांसफर नसेट नंबर, एंड इट इज अ डायमेंशन लेस नंबर। Clear everyone? Street land filter is modified type of. Correct answer is leaf filter. यहाँ पर देखिए ये लीफ फिल्टर हो गया हमारे पास में, और
इसीलिए फिल्टर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्वीटलैंड फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरपार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। सो एट्रिशन और इम्पैक्ट के प्रिंसिपल में कौन सी मिल काम करती है? तो फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में फ्लूइड एनर्जी मिल है और ये इम्पैक्ट और एट्रिशन पे काम करती, और अप्रोक्स पार्टिकल साइज कितना कर देती, 1 to 2000 माइक्रो। तो यहाँ पर हमारा यूनिट ऑपरेशन के एमसीक्यू के ये 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से विद सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, इनके प्रूफ भी मैंने आपको दिए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।